Now, welcome back. Now, the second part of today's discussion is the actually drug elimination. We know elimination after chemical change in the drug, it was the unavailability of its active form in the body. या हम और भी कहते हैं कि it is a disappearance or removal of the active form of a drug from the body. And we have seen previously also, and repeat again, that this inactivity is achieved either through metabolic degradation of the drug or when we get excreted from the body. We have up to now mainly two types of order of elimination. The first is the first order elimination or kinetic. Kinetic actually, this first order is observed in all the kinetic processes in the absorption, distribution, especially at the level of plasmapheretic binding, and then obviously at the metabolism excretion. That is why we are calling it elimination, etc. But because here we're specifically discussing the elimination, that is why instead of calling it first order kinetic, we can specifically call it as first order elimination only. Now, in this first order, what happens? Here is actually a constant fraction or percentage of the drug is eliminated or processed per unit time. In the given time, whatever the amount of that drug is present, its percentage is processed. If it is for absorption, for example, in some cases we study absorption is 80%. So whatever the amount is given of that drug to the person, 80% of that amount will be absorbed. So that is the first order elimination. Similarly here in the elimination, irrespective to the concentration or the dose or the amount of the drug, elimination will occur. So this is true for almost all the drugs available with us, which may be in thousands in number, except few जिनका हम जिक्र बाद में करेंगे. So due to this reason, because whatever the amount is provided, that will be processed, absorb हो जाएगी, distribution हो जाएगी, plasma binding हो जाएगी, eliminate हो जाएगी, वगैरह वगैरह. So basically it depends on how much the drug is brought to that site for this process through circulation. So we can also call it a flow dependent elimination, and from which the high level of extraction of that drug occurs. Here actually these kinetic processes जो जहाँ पे elimination की बात कर रहे हैं, they are directly proportional to the plasma drug concentration. जैसे मैंने कहा कि जितनी भी ड्रग की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाएगा. So whatever amount is present, it will be eliminated. इसको ये एक होम टेक मैसेज कह लीजिए फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का. अब जरा ये ग्राफिकली भी देख लीजिए. As I've told you, is a fixed percentage is processed. For example, 50% elimination is seen. तो 5 years होगा उसकी 50% 2.5 हो जाएगा. 2.5 का 50% 1.25. So a fixed percentage of the drug is eliminated. So elimination rate is 50%. This is an example. It may vary. किसी का 10% है, किसी 70, किसी का 90 वगैरह. So whatever the percentage is this, that is fixed of that particular drug, and that is processed. Here because we are discussing again, I'm telling you elimination, so fixed percentage is eliminated. Now let's have an example of a drug. इसकी प्लाज्मा डिके ऑफ ड्रग इन फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन कैसे होगी. फॉर एग्जांपल 80 मिलीग्राम का जो 100% ड्रग की थी, ठीक है, एबिलेशन हाफ लाइफ, तो 100% 50% एक हाफ लाइफ में हो गई, और 80 थी और 40 मिलीग्राम पे पहुंच गई. अगले हाफ लाइफ में वो उसका 50% 20 मिलीग्राम पे पहुंच गई, 10, 5 एंड सो ऑन. तो हमने ये देखा कि in first order elimination usually half life is fixed. It does not change. Now half life and clearance, remember, both will remain same and constant if the renal functions and the hepatic function are normal, because the clearance, which is the rate of elimination,
We know elimination depends upon this hepatic metabolism and renal excretion. So if they are normal, half-life will remain same. Similarly, rate of elimination, which is clearance, that will also remain the same. However, obviously, at very high concentration of any drug, these kinetics of absorption and distribution, metabolism वगैरह जो भी है, that will start behaving as a zero order kinetic, क्योंकि आखिर हर प्रोसेस की कहीं ना कहीं तो लिमिट होगी ना, ठीक है। अगरचे हमारी जो नॉर्मल थेरेपी डोज है या इवन अक्सर की टॉक्सिक डोज तक भी सारा प्रोसेस काफ़ी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। लेकिन एक लेवल आएगा जब वो जो प्रोसेस जो उसकी जिसमें से गुजर रहा है, एब्जॉर्प्शन की कोई सैचुरेशन होगी, कोई लिमिट होगी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की कोई लिमिट होगी, इस तरह मेटाबॉलिज्म की लिमिट होगी, एक्सक्रीशन लिमिट होगी। वो जब लिमिट आ जाएगी तब वो फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब हम उसको कहेंगे जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन या जीरो ऑर्डर किनेटिक, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल थेरेपी डोज में या जैसे मैंने कहा इवन जो कॉमन टॉक्सिक डोज में भी always majority of the drugs they are following the first order elimination and their half-life does not change and clearance also remains the constant. Now second order is the zero order elimination. The other names given to the zero order is capacity limited or saturable or Michaelis Menten elimination. Capacity limited इसलिए the process involved for elimination जो कि metabolism excretion होता है तो उसकी कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा वो ना मेटाबलाइज कर सकेगी ना उससे ज़्यादा वो एलिमिनेट उसको एक्सक्रीट कर सकेगी। तो उसकी सेचुरेशन हो जाती थी प्रोसेस की खास लिमिट के बाद। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ड्रग हैव टू वेट फॉर द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो फर्क यहाँ पे ये होता है कि इन दी फर्स्ट ऑर्डर फिक्स्ड रेशियो वाज फिक्स्ड परसेंटेज, यहाँ पे में फिक्स अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड इन दैट इवेंट। In this case, if the dose of the drug is high enough, obviously elimination pathways of the most of the drug will become saturated. उसकी metabolic और उसकी excretory जो processes हैं उनकी saturation हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ना मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो सकता है ना एक्सक्रीशन से ज़्यादा हो सकता है। और एक और बात हो कि इसमें स्टेडी स्टेट नहीं मिलती, फर्स्ट ऑर्डर में स्टेडी स्टेट कंस्टेंट मिल जाती है, जीरो ऑर्डर में नहीं मिलती, बिकॉज यहाँ ऑलवेज द कंसंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एक जगह पे जाकर स्टैटिक नहीं हो जाएगी, स्टेडी स्टेट में नहीं होगी। और दूसरी है कि इसमें क्लियरेंस होगी दैट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। हल्की सी भी इंक्रीज हुई, a small increase in dose of the drug can produce a disproportionate increase in the plasma drug concentration. और एग्जांपल इसमें आएंगी जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में वारफरीन, अल्कोहल, एस्प्रिन, थियोफरिन, टॉर्बिटमॉल, फिनाइटिन, रफिनडाइन एक्सेट्रा, और एब्रिविएशन अक्सर का लिखा पढ़ा जाता है वाट पावर, ठीक है। तो ये जो W फॉर वारफीन, अल्कोहल, ठीक है, एंड एस्प्रिन दोनों इकट्ठे, टी थियोफालिन, अगला टी फॉर टॉर्बिटमॉल एंड पी स्टैंड फॉर पावर। तो वाट पावर एब्रिविएशन है, इनको नाम याद रखने के लिए। यूजुअली यहाँ समझने वाली बात यह है कि एट द इनिशियल थेरेप्यूटिक लेवल्स अभी सैचुरेशन नहीं हुई होती प्रोसेस की, एब्जॉर्प्शन की या प्लाज्मा बाइंडिंग की या मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की, तो अगर तो इनिशियली लो डोज दी हुई हैं विद इन थेरेप्यूटिक रेंज और अभी शुरू है, तो अभी देखें कि उसमें अभी सैचुरेशन नहीं होगी, तब तक अभी जीरो ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक हम फर्स्ट ऑर्डर ही कहेंगे, ठीक है। जब सैचुरेशन हो जाएगी then zero will start. Another observation is due to constantly go on increasing the concentration and the amount of the drug in the zero order kinetic and elimination, और इधर कांस्टेंट क्योंकि अमाउंट कम होती है, लिमिट होती है, प्रोसेस परसेंटेज नहीं होती, तो हाफ लाइफ इसमें कांस्टेंट नहीं होगी, एक और करेक्टरिस्टिक ये होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हाफ लाइफ बल्कि prolonged होती जाएगी with increased plasma level. So we can also explain
this zero order also depending upon their concentration and half-life, because as a fixed amount is processed. For example, हम मिसाल लेते हैं कि 10 milligram is eliminated in a particular time. तो फर्ज करो 4 घंटे में एलिमिनेट होती है every 4 hourly. तो 80 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम हो गई तो 70 मिलीग्राम आफ्टर 4 आवर, अगले 4 आवर 60 एंड 40. जबकि हाफ लाइफ के डेफिनेशन के हवाले से 80 से 40 में पहुंचने में अब बजाय इसको 4 घंटे लगने के इसको तकरीबन 16 घंटे लगे, और 40 का 50% 20 मिलीग्राम होगा. ठीक है, तो अगले हाफ लाइफ तक पहुंचने में इसको 8 घंटे लगे. ठीक है, और 20 का 10 मिलीग्राम है तो सिर्फ 4 घंटे में पहुंच गई, वगैरह वगैरह. सो अब देखें कि इसमें हाफ लाइफ फिक्स नहीं हो सकती, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन. ठीक है, बिकॉज हियर फिक्स्ड अमाउंट इज प्रोसेस, नॉट द फिक्स्ड परसेंटेज. चलिए आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जीरो ऑर्डर की. जैसे मैंने कहा, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्प्रिंग. इसमें दो जगह पर सैचुरेशन हो जाती है, बाइंडिंग साइड पर और मेटाबॉलिक साइड पर. तो अनबाउंड एंड अनमेटाबलाइज्ड फ्रैक्शनल स्प्रिंग इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डोज. अब अगर वो जो मैं बात कर रहा था शुरू में फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है कि अगर इनिशियल स्मॉल डोजेज में जो आके जाके पढ़ेंगे आप, एंटीप्लेटल डोज ऑफ दिस एस्प्रिन या इवन अप टू एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक जो 3 मिलीग्राम टू 600 मिलीग्राम होती है, वहाँ तक बाइंडिंग भी और मेटाबॉलिज्म भी दोनों, ये जितनी भी अमाउंट है वो सारी बाइंड भी हो रही है और मेटाबलाइज भी हो रही है. तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करें. लेकिन उसके बाद अगर मजीद हम डोज बढ़ाएंगे तो अब सैचुरेशन हो जाएगी. नो मोर ड्रग ऑफ एस्प्रिन that will get bound to the plasma membrane. Similarly, no more will be metabolized. अब पहले जब मुकम्मल हो जाएंगी फिर का प्रोसेस आएगा. पहली बाइंडिंग वाली हट जाएंगी, जगह खाली होगी तो नई की बारी आएगी, वरना नहीं आएगी. तो पहले का मेटाबॉल हो जाएगा, एंजाइम फारग हो जाएगा तो अगले मालिक्यूल को डील करेगा, वरना वो नहीं करेगा. तो चुनाचे अनमेटाबलाइज्ड अनबाउंड ड्रग दैट विल स्टे इन द प्लाज्मा एंड विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डोजेज. जैसे कि एस्प्रिन की एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज होती है, वो तकरीबन 2400 मिलीग्राम होती है. अब उसमें क्योंकि जीरो ऑर्डर हो जाती है तो हम देखते हैं कि जीरो ऑर्डर में जो अनबाउंड ड्रग है वो फ्री एक्टिव होती है, और अनमेटाबलाइज भी एक्टिव होती है. तो एक्टिविटी कहीं ज़्यादा हो जाती है विद इंक्रीज इन डोजेजेस, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता. तो हाफ लाइफ इसमें वेरी करती है फ्रॉम 3 आवर्स टू 16 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द डोज के एंटीप्लेटलेट दी है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दी है, एंटीइन्फ्लेमेटरी दी है, या कौन सी दी है. Now the next examples are alcohol and phenytoin. Oh, and those societies where alcohol is legally allowed, the zero order can play the part in those societies in such a way because here saturation is there, limitation is there. The enzyme alcohol dehydrate which metabolize the alcohol present in liver, brain and stomach can eliminate maximum 7 to 10 gram per hour. अगर क्वांटिटी इतनी ली हुई है कि जो कि 12 घंटे में पूरी होगी, ठीक है, तो 12 घंटे में ही पूरी होगी. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखिए कि फर्स्ट करो कि भी वो डेली रात डिनर के बाद लीगली अलाउड है तो ही कैन टेक. तो लेता है बंदा, रात 8 बजे डिनर किया, उसके बाद एक मखसूस क्वांटिटी ले ली जो अगले 12 घंटे में एलिमिनेट हो जाती है. तो सुबह वो 8 बजे उठ के जाता है ऑफिस, आराम से ड्राइव करता चला जाता है, एल्कोहल का इफेक्ट खत्म हो चुका होता है तब तक. अब अगर किसी दिन फर्ज करें वीकेंड आ गया, संडे आ गया और मेहमान आ गए और बातों में डिनर लेट हो गया, बजाय 8 बजे की रात 11-12 बजे डिनर लिया और उसके बाद जाके उन्हें अल्कोहल ली, अब 12 घंटे वो पूरे लेगा. क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, उसने उतनी ली जितनी पहले लेता था, लेकिन अब 12 घंटे मुकम्मल होने हैं, फिर वो क्वांटिटी जो है वो लिमिट होगी. अब अगर वो रात को 12 बजे लेता है, ठीक है ना, बजाय 8 बजे के, वो जो 4 घंटे का फ़र्क आएगा वो 4 घंटे आगे चला जाएगा. अब बजाय सुबह 8 बजे
वो दोपहर 12 बजे जाकर उसका इफेक्ट खत्म होगा। तो अगर वो ड्राइव कर निकलता है, ही विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, और हो सकता है रास्ते में जाकर पुलिस पकड़ ले और उसको फिर डिटेन कर ले खास जगह पर पुलिस स्टेशन में। सज़ा नहीं होती कोई भी उनमें, उनके कानून में, लेकिन इतना होता है कि दे कीप दैट पर्सन अंडर डिटेंशन टिल द पर्सन इज फ्री ऑफ द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, जो आप लेकिन 12 बजे तक वो उसको बिठाए रखेंगे। फेनिटाइन में भी मेनली सैचुरेशन मेटाबॉलिज्म में, लेकिन एक्सक्रीशन में भी मिलती है हमें, ठीक है, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के साथ ही, और हाफ लाइफ इसकी भी वेरी करती है फ्रॉम 6 to 24। तो इसलिए इन तमाम के साथ हमें कॉन्शियसली रहना पड़ेगा कि क्योंकि ये सारे के सारे एस्प्रिन, अल्कोहल, फेनिटाइन और आगे भी मसलन थियोफाइलिन, वारफरिन, टॉलबुटामाइड, so in all the cases, because all are being eliminated through this zero order, तो इनके ड्रग लेवल हमें मेंटेन खास लेवल में करने पड़ेंगे, वरना ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करते रहेंगे। बिकॉज plasma concentration increases disproportionately with increase in dose. Now this is the graphic explanation of the zero order kinetic in case of phenytoin. On this side, serum phenytoin concentration milligram per liter, and on this side dosage is there, 200 milligram, 4 milligram, 8 milligram per day. With this first case, there are usually 5 types of dosages: 1, 2, 3, 4, and 5. Now with 2 dosages we have seen, हालांकि ये जगह इस डोज की बढ़ाई ये थी, लेकिन कब ऊपर चली नो बडी कैन, 3rd 4th नीचे रह गई, 5 फिर बढ़ गई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ड्यू टू जीरो ऑर्डर। सो व्हाट वी हैव सीन कि इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ this metabolism and excretion is saturable, and it can vary from person to person also, depending upon the liver function and the renal function. So the levels of these drugs in the blood may vary from person to person. So one inference is we have to determine the therapeutic level of such drugs always while we are using it. सो फेनिटाइन को जब, फेनिटाइन बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक है, बड़ी अच्छी ड्रग है, बहुत इस्तेमाल होती है। तो फेनिटाइन को जब भी इस्तेमाल करेंगे हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे विद द थेरेपेटिक लेवल्स कि कितने हैं, 10 और 20 मिलीग्राम के दरमियान में है, कम या ज़्यादा तो नहीं होगा, कम होगा इफेक्ट मिलेगा, यहाँ से 20 से 21 भी आएगा तो टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ डिफरेंसेस देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में, जब तक पढ़ा हमने उस हिसाब से। फर्स्ट तो क्या है कि इसमें फिक्स परसेंटेज एलिमिनेट हो रही है, इस फिक्स्ड अमाउंट एलिमिनेट हो रही है। दूसरे हम मिसाल दी थी कि अगर 500 माइक्रोग्राम ऑफ ड्रग ए मैक्सिमम लेवल हमने अचीव कर लिया किस ड्रग के, तो अब 1 घंटे बाद अगर उसका 1% देखें, 1% कितना 1 घंटे बाद होगा, जस्ट 5%, तो बाकी जो रह जाएगी 495 मिलीग्राम रह जाएगी। जबकि जीरो ऑर्डर में अगर देखें परसेंटेज के हवाले से कि उसका भी 500 माइक्रोग्राम ही दिया हमने मैक्सिमम लेवल, ठीक है, लेकिन उसका परसेंटेज जो है फिक्स अमाउंट 1 माइक्रोग्राम जो एलिमिनेट हुई है 1 घंटे बाद, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 499 माइक्रोग्राम होगी। तो ये फिक्स परसेंटेज प्रोसेस होगी, ये फिक्स अमाउंट प्रोसेस होगी। नाउ इफ वी सी इन केस ऑफ हाफ लाइफ कि ड्रग ए आफ्टर 6 आवर्स 50% ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड, दैट इज उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है, तो अमाउंट उसकी अलबत्ता 500 से कम होकर 250 माइक्रोग्राम हो जाएगी, ठीक है। और इसमें इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाफ लाइफ सेम रहती है। जबकि जो ड्रग बी होगी, ठीक है, इसके 6 घंटे बाद अगर फिक्स अमाउंट 50 माइक्रोग्राम एलिमिनेट होती है, तो 6 घंटे बाद 500 से कम होकर मैक्सिमम 450 माइक्रोग्राम रह जाएगी। इसलिए इसमें हाफ लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती, और इसलिए जीरो ऑर्डर में चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी इज मच, ठीक है। तो ये टोटल रिलेशनशिप जो हमने देखा हाफ लाइफ और एलिमिनेशन का, ये हमने इसको हाईलाइट जो किया है इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, ताकि मजीद आगे डिस्कशन समझते हुए आपको आसानी हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।